Everyone acknowledges that Bhagavad Gita is one of the most profound message of life across all religions. It is the essence of the wisdom of life. And do you know how it begins? Of course, the first chapter is for describing the chaos which is pervading within life. Life is very chaotic. Life is all turbulence. It's a tsunami, ever present tsunami. So the first chapter is all about describing how chaotic life is and how it breaks you. It really breaks you, breaks your back. So, but then the message begins with Klaibyam Masmagamapat Nai Tatvai Upapadyate. तुम ऐसे नहीं हो अर्जुन, तुम कैसे टूट सकते हो? तुम तो ऐसे ना थे is another expression, but तुम ऐसे नहीं हो. तुम कैसे टूट सकते हो? नए तत्वै उपपद्यते. These things, they can't upset you. You are you. You are not important. Plebeium means important. You're not important. तुम अपने आप को कमजोर कैसे समझ सकते हो? It doesn't befit you, doesn't suit you. You are you. And it is being said to every human, not a particular Arjun. Arjun means a pure one. Arjun, the word Arjun means pure one. वाहिगुरु, क्षुद्रम, ये टेम्पररी है तुम्हारी वीकनेस, दौर्बल्यम. क्षुद्रम दौर्बल्यम टेम्पररी है, अभी छोड़ दोगे तुम इसको. क्षुद्रम दौर्बल्यम त्यक्तवो तिष्ठ परंतप. छोड़ो और अपने आप को पहचानो. मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बट मैं like a mother will hold a sweet in my hand and you will have to open your mouth and eat it. I can't push it in your mouth. Mother can't push milk into the child's mouth. Child has to suckle. Child puts all the effort. Mother just provides the breast. The child suckles. सारी effort तो बच्चे की है. And then he tells Arjun, उद्धरेत आत्मनात्मानम ना आत्मानम अवसादे. तुम ही अपना उद्धार कर सकते हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें हेल्प कर सकता हूं. आपके प्यार में हम संवरने लगे, आपको देखकर हम निखरने लगे. मतलब मैं तो आपको प्रोवाइड कर सकता हूं द स्वीट, यू हैव टू लव इट, यू हैव टू सकल. तो पोएट सेज द सेम थिंग इन अंडरस्टैंडेबल वे, क्योंकि तो श्लोक तो बहुत डीप हो जाते हैं, तो आप उसमें उलझ जाते हैं. उलझ जाते हैं ना वो संस्कृत में, और समझते नहीं है कि मतलब वो आप सोचना शुरू कर देते हैं महाभारत कैसे हो रही होगी और क्या हो रहा होगा. नहीं, नथिंग लाइक दैट. इट्स एवरी डे इज ए महाभारत. महाभारत डजंट मीन लड़ाई. महाभारत मीन जिसमें सब कुछ है. महाभारत सब कुछ.
वेल द पोएट से जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती, तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती। Isn't it the same thing? तुम्हारी मर्जी है, you can bless yourself or you can continue to consider yourselves to be weak, impure, sinner, bad। हर वक्त मैं इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहा हूँ। What improvement? You're perfect, you're pure, you're already made perfect in my image and likeness, my Krishna। Oh my Guru, आप में और गुरु नानक में वैसे कोई अंतर है नहीं, आप में और भगवान सत्य साई बाबा में कोई अंतर नहीं है। भगवान सत्य साई बाबा इज अ हेल्प, इज अ मदर, इज होल्डिंग अ स्वीट इन हिज हैंड। यू ईट इट, ब्लेस योरसेल्फ। हरे राम। आपके प्यार में हम संवरने लगे। सो प्यार तो आपने करना है ना, ही कैन बी जस्ट अवेलेबल। प्यार तो फोर्स नहीं किया जा सकता। आपके प्यार में हम संवरने लगे, आपको देखकर हम निखरने लगे। हरे कृष्णा। सो ये प्यार होता क्या है? वी वर डिबेटिंग वंस, आई मीन आई वाज डिस्कसिंग इट विद वन ऑफ माय वेरी क्लोज ब्रदर्स, fellow companion on this path of life. Life is a path, पंथ है लाइफ, लाइफ पंथ है। इसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंथ नहीं है, लाइफ इज द पंथ। ये रास्ता है, इसके अंदर जब चाहें आप, यू कैन ब्लेस योरसेल्फ। You see, I was born in a family where drinking was a norm. Norm means normal. If you don't drink, you were considered abnormal. Be it my father, be it my relations, everybody. Evening drinking was a norm. And they considered if you don't drink, you're abnormal. So people who don't drink, they are to be kept at bay. उसको दूर ही रखना चाहिए, इन लोगों से दूर रहना चाहिए। It was considered so normal, so very normal. So I was formally initiated into drinking at the age of 16, but before that also from childhood, stealing daddy's drink from the cupboard was a norm, and then giving it to all my younger brothers and sisters। थोड़ा थोड़ा निकाल लेते थे और सबको पिलाता रहता था मैं, छोटे भाई बहनों को। और डैडी की ड्रिंक में उतना पानी डाल देते थे। सो but I started formally drinking at the age of 16। But I cannot forget that I often used to want कि बिना पिए नशा क्यों नहीं होता। That was a very dear question in my heart। मतलब ये नहीं कि भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है या कुरान में क्या लिखा हुआ है, कि नशा क्यों नहीं है जिंदगी में बिना पिए। क्यों, पीने में क्या प्रॉब्लम है? पीने में हेडेक वेडेक ज्यादा है। पैसे की कोई कमी नहीं है, मगर हेडेक ज्यादा है। आदमी, यू डोंट फील गुड रियली। थोड़ा 2 मिनट के लिए नशा तो आ जाता है, मगर इट्स नॉट रियली गुड। तो फिर जो लोग भी दारू पीते हैं वो क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि असली मजा नहीं है। नहीं है, सबको पता है, जो पीता है उसको पता है कि ही वॉन्ट्स टू लीव, पर छूटती नहीं। क्यों नहीं छूटती? क्योंकि नशा तो चाहिए ना। बिना नशे के जिंदगी जी कैसे जा सकती? इसीलिए तो हमारे फैमिली में ही बोलते थे जो लोग पीते नहीं उससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इनको जीना ही नहीं आता। बिना नशे के जीना क्या जीना है? ये भी कोई जीना है लल्लू? उसने बोला ना, अमिताभ बच्चन ने, मैं जंगल में गया और मुझे शेर खा गया।
तो बच्चे कहते हैं मगर आप तो जिंदा हैं। कहते हैं ये भी कोई जीना है लल्लू, जीने में तो नशा आना चाहिए ना। सो नशा प्यार है, प्यार नशा है। और प्यार के लिए तो कोई चाहिए ना, बिना किसी के प्यार कैसे करोगे। सो इसलिए जो निरंकार है वो आकार ले लेता है। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, देखो कहीं यारो ठुकरा न देना मेरा नजराना। नजराना मतलब तुम दिख गए और मैंने भी अपनी शक्ल ले ली एक। अगर तुम ही नहीं दिखते तो मैं शक्ल क्यों लेता। तुमको देखने के लिए मैंने भी एक नजरें ले ली, नजराना। एज ए ग्रेटिट्यूड कि तुम दिख गए तो मैंने नजर ले ली, मैं बन के आ गया कुछ। ये तो मेरा नजराना है, मैं कुछ बन के आ गया। दीवाना तो मैं हूं ही। दीवाना क्या होता है, पागल नहीं होता दीवाना। दीवाना इज मैड इन लव, नॉट मैड अदरवाइज तो ही शुड बी इन अ मेंटल असाइलम। गॉड शुड बी इन अ मेंटल असाइलम अगर वो सच में पागल होता तो। नहीं, ही इज मैड इन लव। सो इन लव, जो पागल है उसको मजनू तो बोल सकते हैं, पर उसको मेंटल असाइलम में नहीं डाल सकते। सो वो एक शक्ल लेके आ जाते हैं। उसको हम गुरु बोलते हैं, उसको गुरु नानक बोलते हैं, उसको रसूल अल्लाह मोहम्मद बोलते हैं। वो चाहता क्या है कि आप दिख जाओ, दिख जाओ। कई लोग दिखते नहीं है ना, ऐसे सुनते रहते हैं पर दिखते नहीं है। वो कहते हैं दिख जाओ, वो वेख्या उन्हें नजर ना आवे, बहुता एहो विडान। मतलब आपको तो दिख रहा हूं सपोज मैं, मगर मैं आपको नहीं देख सकता। ये तो बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। क्यों नहीं हम दोनों एक दूसरे को देखें। नानक नदरी पाइये, कूड़ी कूड़ा ठीस। नदरी पाइये, कूड़ी कूड़ा ठीस। नदरी क्या होता है, हम कहते हैं ग्रेस, गुरु कृपा। नदरी गुरु कृपा ते हुक्म पछाणे। वो गुरु तो दिख ही रहा है, आप नहीं ना दिख रहे। भगवान तो हमेशा ही है, वो तो नित्य है, शाश्वत है। सत्य साई बाबा टोल्ड मी कि तुम क्या करते हो, बार बार पुट्टपर्ती आ जाते हो, हाउ सिली। क्या मुझे देख नहीं पाते हो तुम सब जगह। फिर हम कंसेप्चुअलाइज करना शुरू कर देते हैं पेड़ में और फिर बादलों में, कि बाबा के जैसे मुझे बाल दिख रहे हैं। अरे बाबा इसे निरंकार, वो तो हर वक्त है, नित्य शाश्वत बोलते हैं। उनकी शक्ल मत बनाओ कि बाल बड़े बड़े दिख रहे हैं और शक्ल में ऐसा नोज दिख रहा है। अरे गुरु नानक इज ऑल्सो बाबा, रसूल अल्लाह मोहम्मद इज ऑल्सो बाबा, श्री कृष्णा इज ऑल्सो योर गुरु, श्री राम इज ऑल्सो योर गुरु। इन सब में कोई अंतर नहीं है। आपको तो एक बिलावट चाहिए, और उस बिलावट के लिए आप भी तो अवेलेबल होने चाहिए ना। आप बोलो मुझे अवेलेबल नहीं होना मगर तुम अवेलेबल हो, वो फिर आगे पीछे घूमता रहेगा। वो कहेगा ठीक है। वो इधर उधर थोड़ा बवाल भी क्रिएट करेगा, बिकॉज आप बच्चे को अटेंड ही नहीं करोगे तो बच्चा इधर उधर चीजें तोड़ेगा, इजंट इट। वो तो बच्चा ही तो है ना दीवाना। तो फिर वो आप कहेंगे मेरे को पनिशमेंट दे रहा है। ये पनिशमेंट नहीं दे रहा भगवान। भगवान तो आपकी अटेंशन चाहता है ना। कभी कभी कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं ना, जो उनको बहुत बड़ी भयानक बीमारी हो जाती है जिसको कैंसर बोलते हैं। तो मैं बोलता हूँ देखो आप तो लकी हो, क्योंकि नॉर्मली भगवान को कोई देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, मगर आपके तो दरवाजे पे आके उसने दस्तक दे दी है कि खोल दो ना आप दरवाजा प्लीज। Isn't it? It's a grace that he has reminded you कि देखो ना प्लीज मेरी तरफ। और चाहता क्या है वो आपसे, सिर्फ देखो, कुछ नहीं। और नजरें चाहता है आपकी,
तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे। उसको आप इतने अच्छे लगते हो कि वो कोई ना कोई शक्ल ले लेता है। श्री कृष्ण बन के आ जाता है, श्री राम बन के आ जाता है। आप भी तो देखो ना, आप छुपे मत रहो। एंड ही इज अ जेलस गॉड, मीन्स आप बस उसके हो जाओ। जब तक आप उसके नहीं हो जाते, ना उसकी बात बनती है ना आपकी बात बनती। आपको दिख नहीं रहा कि उसकी बात नहीं बन रही है, क्योंकि जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि जिंदगी की बात नहीं बन रही आपके बिना। आप प्यार ही नहीं करते उससे। आप करके तो देखो प्यार, जिंदगी की बात बन जाएगी, सब तरफ फूल खिल जाएंगे। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, हर तरफ निगाह में गुल खिले हुए। और वो इतना जेलस है कि आगे से बोलेगा, ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हैं दरमिया तो फासले हुए। अभी तुमको फूल दिखने शुरू हो गए? नहीं नहीं, मुझे फूल नहीं देखने, मुझे बस तुम्हें ही देखना है। आई मीन ही सो जेलस के फूल तो खिलेंगे ही जब आपको प्यार हो जाएगा। फूल तो खिलेंगे, मगर वो कहेगा नहीं, फूलों वूलों को मत देखना। फिर क्योंकि अगर तुम फूलों को देखोगे तो फिर मुझे कैसे देखोगे। फूल तो खिलेंगे जब तुम मुझे प्यार करोगे। वो तो कोई रोक ना सकेगा, सब तरफ बसंत ऋतु आ जाएगी। बसंत ऋतु इज दी फाइनल ऋतु, लास्ट ऋतु, बसंत ऋतु। आप खिल जाएंगे। बसंत का मतलब क्या होता है? हरे कृष्णा। बसंत मीन्स यूथ। आप यंग हो जाएंगे, इमीडिएटली यंग हो जाएंगे। पीला रंग सब तरफ, हरे कृष्णा, हर तरफ फूल ही फूल खिल जाए। फूल क्यों नहीं खिले हुए हैं, सब तरफ दुख ही क्यों है? क्योंकि अभी आपको प्रेम नहीं हुआ। प्रेम की बड़ी स्टेजेस हैं। इनिशियल इज अट्रैक्शन, उसके बाद इज ऑ कि तुम क्या हो, उसके बाद इज रेवरेंस, रिस्पेक्ट, उसके बाद इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। दैट्स कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। जब तक ये ग्रैटिट्यूड नहीं होगा, तब तक परिपक्व नहीं होगा प्रेम। प्रेम की परिपक्वता इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। यू नो, इसलिए मैं शेयर करता हूं कि मेरे को नशा क्यों रहता है हमेशा। बिकॉज आई एम ऑलवेज इन ग्रैटिट्यूड, क्योंकि मैं तो किसी चीज के बिना हूं ही नहीं। तुम्हारे होने से ही मेरा होना है। ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन नहीं होगी तो मैं मर जाऊंगा, फिर मैं एक्सपीरियंस कैसे करूंगा फूलों को। ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स फूड। कहते हैं ना, हाथ जोड़ा करो खाना खाने से पहले। मतलब क्या है? ग्रैटिट्यूड कि तुम खाना मेरे टेबल पे नहीं आते तो मैं मर जाता। उसमें गलतियां कैसे निकाल सकते हो आप उस खाने में? अरे राम। लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड, क्योंकि लोग ही नहीं होंगे तो आप करेंगे क्या? अरे राम। ये संसार नहीं होगा तो क्या करेंगे, जिएंगे कैसे? ग्रैटिट्यूड परमानेंट, शाश्वत, नित्य, हर चीज के लिए, अपने होने के लिए ग्रैटिट्यूड। ये होगी नहीं बॉडी तो मैं कैसे, मैं हूंगा कौन फिर? आप होंगे ही नहीं तो मैं किससे बात करूंगा? मेरी वाइफ नहीं होगी तो घर कैसे होगा? घर नहीं होगा तो मैं रहूंगा कहाँ? देयर इज अ ग्रैटिट्यूड, एवरी मोमेंट देयर इज अ ग्रैटिट्यूड। दैट इज लव, दैट्स गॉड, दैट्स नशा।